वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो आप लोग? बिंदास। आज मैं लेकर के आया हूं एओडी का वीडियो नंबर 4, जो कि हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यदि एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, सो एफ डैश एक्स आएगा। पॉइंट एट x इज इक्वल टू x1 x2। या तो ये पॉइंट को हम इसको इक्वेट करके जीरो से निकाल सकते हैं, तो हमारा पॉइंट आएगा x1 x2। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट x1 x2 को यहां पे पुट करेंगे तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या अदरवाइज एट दैट पॉइंट एफ डैश एक्स इज not going to be exist. So those all the point is called the critical point. So first of all what we can do, any function we have to be find the maximum value or minimum value, then differentiate, equate with the zero, and we can find all the critical point. After finding the critical point, we can go for the second derivative. Second derivative, that means once again we are going to differentiate those things. If I am differentiate this one, and after that we are keeping here this critical point here, just we are keeping here the x1 point here. If the x1 I am keeping and this become double differentiation greater than 0, so it is the minimum point. Means at x equal to x1 this become the minimum point, and f of x1 is called the minimum value of this function. Again another point I am taking here, x2. If double derivative at the x2 this become less than 0, that means it is the maximum point. Then it is called the maximum, is the function is the maximum at the point of x2, and f of x2 is the maximum value. Here you can see from the graph we can try to see if the dy by dx means any function dy by dx is greater than, and just after that point it is going to become the negative, means less than 0. So that point we can say the maxima. And if the lesser than means the dy by dx is less than 0, and after that this become the greater than 0, so at that point it is going to be a start the greater than 0. This point is called the minima. One thing you can see here, generally a student are thinking like that कि maximum value means the greatest value, but not at all like that. May not be. So maximum value of the function need not be the greatest value. Minimum value of the function need not be the least value. Sometime the minimum value is also become greater than the maximum value. Minimum value is greater than the maximum value is also possibility is there. Now we can see this thing. Just you can see. अब आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे आप देखिए क्या ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, यहां पे क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन यहां पे जो मिनिमम वैल्यू है मेरा वो मैक्सिमम से बड़ा है। कई क्वेश्चन में और क्या आता है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इफ वी कैन सी हियर दिस डायग्राम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस ऑल कॉल्ड द लोकल मिनिमा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस ऑल कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा. Among all the local maxima, which value are the greatest? That is called the global maxima. There are so many are the minimum value. So among this all the minimum value, which value are the least among that minimum is called the global minima. Yeah, now we can see the few sum based on this concept. Now we have to find the local maxima value of the function f of x equal to 2 by x, x square,
this thing. We have to be find the local maxima of this value. By the way, this sum came into the last year 2021 in mains examination. As the concept we know, when they are asking about the maxima minima, we are going to be differentiate this one. If we are differentiate this one, f dash x is equal to, थोड़ा सा पहले करेंगे क्या ना इसको, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल में आप पहले आप कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए. बाय द वे डायरेक्ट भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यह देखिए, अब इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग के लिए डिफरेंशिएशन करना. अब एक्सपोनेंशियल का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वो तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा, लिख दिया मैंने इसे. अब नाउ यहां पे क्या होगा, u इंटू वी फॉर्म. u इंटू वी फॉर्म तो एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखता हूं. इसको क्या कीजिए आप, log 2 बाई एक्स है, दैट मीन्स log 2 माइनस log x. log 2 0 माइनस log x मीन्स द माइनस 1 बाई एक्स, मीन 0 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2x log 2 बाई एक्स. क्या मैंने किया, पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दिया, उसके बाद इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया तो आएगा माइनस 1 बाई एक्स. उसके बाद इस पार्ट को एज इट इज मैंने रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया. अब इसको हम इक्वेट करने जा रहे हैं 0 से, e टू द पावर एक्स स्क्वायर log 2x. यहां पे आप देखिए ये x कैंसिल होगा, x का आप कॉमन ले लीजिए यहां पे. इफ वी कैन टेक x कॉमन, सो हियर माइनस 1 प्लस 2 log 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 0. अब हम इक्वेट करते हैं, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता है. दूसरा वैल्यू यदि x इक्वल टू 0 आता है तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बिकम द अनडिफाइंड. So x value only we are finding here by equating this term. We can write log is equal to 1 by 2, means 2 by x is equal to e to the power 1 by 2, या otherwise x equal to 2 to the power 2 into e to the power minus 1 by 2. We can get the x value. अब आप देखो यहां, मुझे यदि मैक्सिमा मिनिमा यहां पे निकालना है, यदि क्रिटिकल पॉइंट 2 3 4 आ जाता है, मतलब मोर देन 2 आएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव करके मुझे चेक करना होगा. लेकिन यहां पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है. यदि 2 3 4 पॉइंट आता है, मोर देन 2 पॉइंट इज कमिंग, देन वी हैव टू बी चेक. But only 1 point is coming, that means in this point only it is going to become a maximum. वैल्यू को पुट करो उसमें. अब हम लोग यहां पे पुट करते हैं वैल्यू को. देखिए आप इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, 2 2 कैंसिल, हमारा जो f ऑफ x आने वाला है, f ऑफ x यहां पे लिख दीजिए मैक्स. x के प्लेस पे आप ये रखिए, 2 2 कैंसिल, e टू द पावर 1 by 2 मीन्स रूट e. अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिए, ये 4 आएगा और ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 1. दैट मीन्स इसका वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, e टू द पावर 4 बाई e, आई इसका 2, ये कैंसिल, e टू द पावर 2 बाई e, दैट इज आवर फाइनल आंसर. e टू द पावर 2 बाई e इज आवर द फाइनल आंसर. या नोट डाउन ऑल ऑफ यू. इस सम को हम लोग देखते हैं. द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, दिस अकर एट द पॉइंट, मीन्स ये जो कर्व दिया हुआ है इसका स्लोप बिकम मैक्सिमम एट विच पॉइंट. कर्व का मैक्सिमम नहीं, कर्व का स्लोप का. कई बार स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर सकते हैं, कर्व सोच ले, नहीं कर्व का नहीं, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकालते हैं हम लोग. इसका क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स.
जहां भी मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट ही तो करना है हम लोग को यार। देखो यहां पे हाफ 4x³ माइनस 15x प्लस 36x x², 36x माइनस 19, ये क्या मेरा आ गया स्लोप। अब मुझे फाइंड आउट करना है एट विच पॉइंट दिस स्लोप इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, मीन्स हमारा अब ये स्लोप का फॉर्म ये आ गया है। अब देखिए आप यहां पे ये 2 कैंसिल, फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पे हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। यदि कर्व का मैक्सिमम या मिनिमम पूछता देन वी कैन फाइंड हियर द क्रिटिकल पॉइंट, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दिस कर्व मैक्सिमम या मिनिमम एट विच पॉइंट, दे आर आस्किंग अबाउट द स्लोप। सो आइए अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, dm/dx, क्योंकि m का ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 6x² माइनस 30x प्लस 36, अब यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट को लाना है। 6 कॉमन लीजिए आप, x² माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज कीजिए, x माइनस 2 x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या निकल गया 2 और 3। यदि सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलता डायरेक्ट लिख देते हम लोग, चेक करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अब मुझे यहां पे चेक करना होगा। अब क्या कीजिए आप, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। dx², 6 तो कांस्टेंट टर्म है, रहने दो ऐसे आप, 2x माइनस 5, मैक्सिमम पूछ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 2 ही हमारे पास है। पहला आप पुट करो 2 एट x इक्वल टू 2, क्या आने वाला है 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 लेस देन 0। यदि ये लेस देन 0 होगा दैट मीन्स एट 2 एट x इक्वल टू 2 m मीन्स द स्लोप इज मैक्सिमम। मुझे क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। किसमें वैल्यू को पुट करेंगे, यहां पे आके हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। एट द 2 ऑप्शन देखो, अब 2 ऑप्शन तो रिमूव हो गया, यहां पर से 2 ऑप्शन हट गया। उसके बाद सिंपल x का वैल्यू 2 को यहां पे आप पुट कर डालो, m क्या है 2 3 माइनस 15 इंटू 2 होल स्क्वायर 36 इंटू 2। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आपका वैल्यू 9 आने वाला है। दैट मीन्स मेरा पॉइंट कौन सा करेक्ट होने वाला है 2,9 मीन्स आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। Now we can see here the shortest distance between the line x minus y is equal to 1 and the curve x square is equal to 2y. X square is equal to 2y. Just randomly diagram x minus y is equal to 1. आप देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यहां पे, the shortest distance between the line and the curve means from this line to this curve shortest distance. So curve से shortest distance क्या होगा, means यहां पर जो एक पॉइंट आने वाला है इस कर्व पे, वो जो इससे सबसे नियरेस्ट होने वाला है उसी का तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहां पे जो भी पॉइंट यहां सबसे नियरेस्ट होगा उस पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर डालो। ये जो टेंजेंट होगा वो इससे इस लाइन से पैरेलल होने वाला है। यदि इस लाइन से पैरेलल होने वाला है, इसका आप स्लोप देखिए क्या है। हम लोग को पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप इज इक्वल टू 1, कुछ करना ही नहीं है। माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -1, सो -1 बाई -1 1 आ गया मेरा। एट विच पॉइंट the slope of this tangent is going to be 1, so we have to be differentiate this one। यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर डालो आप। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, सो 2x इक्वल टू 2 dy बाई dx। ये कट आपका क्या आ गया, इसको इक्वेट कीजिए 1 से, क्योंकि dy बाई dx इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1। यदि x का वैल्यू 1, यहां पे आप डालो वैल्यू, मींस ये वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है 1 एंड 1/2, मींस आवर y वैल्यू इज इक्वल टू बिकम 1, y इज इक्वल टू 1/2। अब ये वाला पॉइंट जो है सबसे नियरेस्ट है इस लाइन से, ये वाला पॉइंट जो है सबसे नियरेस्ट है, ये वाला जो लाइन है उससे। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो ना, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने वाला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1 मॉडुलस ले लो अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो 1 होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, सो -1 होल स्क्वायर। क्या आ गया यहां पे, ये 1 1 कैंसिल, ड्यू टू द मॉडुलस माइनस बिकम प्लस 1/2√2, so shortest length is equal to 1/2√2। I think all of you understood the concept of the maxima minima। I gave the 3 sum, ज्यादा सम मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं, अदरवाइज वीडियो का लेंथ काफी बड़ा होने वाला है। सारा जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है अराउंड 20 to 25 एक बार मैं पढ़ा लूं, उसके बाद मैं मिसलेनियस मॉडल में लूंगा, जो कि 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका होगा वो। या यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको और सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच जो है ना स्प्रेड कीजिए, भेजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि चैनल को वो सब्सक्राइब करें। चलो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।